Yes, my dear students, welcome to our physics class. Students, till our previous video we have discussed about electric potential, potential difference between 2 points, electric potential due to a point charge, electric potential due to electric dipole. These all articles we have discussed. Today we are going to discuss some numericals related to these topics. So let's start it. First example is, if 100 joule of work must be done to move electric charge equal to this, work done given है, charge given है from a place where potential is this to another place. एक पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है, अनदर प्लेस तक लेकर जाना है where potential is V volt. Find the value of V volt. तो हमें ये पता है if one point to another चार्ज को मूव कराया जा रहा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि V माइनस -10 इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यूजिंग द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VB माइनस VA, V फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. वर्क डन इज 100 जूल, टेस्ट चार्ज इज 4 कूलम. V minus -10 is equal to this. So like this we can calculate the value of final potential V. Next question, calculate the potential at a point P due to a charge this located 9 cm away as shown in the figure. इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हमें गिवन है, Q हमें गिवन है. तो सिंपल एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमें पता है. सिंपल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R. Q गिवन है, कूलम SI यूनिट गिवन है, बट जो R है वो सेंटीमीटर में गिवन है. सो फर्स्ट वील कन्वर्ट इट इनटू मीटर, देन वील अप्लाई दिस फॉर्मूला. इज इट क्लियर? Okay, now next question is, hence obtain the work done. For the same question another part is there. Hence obtain the work done in bringing a charge of this from infinity to point P. कोई अनदर चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज, जिसे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट हमें मूव कराना है. इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है, इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट मूव कराना है, वर्क डन कैलकुलेट कराना है. तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. वी नो दिस थिंग. तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल. Work done will be equal to test charge into potential at point P, and potential at point P is already calculated in its first part, so it will be used here. Okay. Next question is, a charge of 20 microcoulomb produces an electric field. 2 points are this and this from this charge. Find the value of potentials at these points. एक सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स दिस इज अ सोर्स चार्ज. 2 पॉइंट्स आर दिस एंड दिस डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस चार्ज. पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2. R जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, सो फर्स्ट विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स एंड विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, and also find the amount of work done to take an electron from one point to another. अब one point to another means A to B लेकर जाना है, then suppose, तो work done will be equal to test charge into potential difference between these 2 points. Work done पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. सो वर्क डन कैन बी easily calculated. And test charge कौन है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम here. So we'll use this and then work done can be easily calculated. Now next question is, at a point due to a point charge the value of electric field intensity and potential are this and this respectively. एक ही पॉइंट पर हमें पोटेंशियल भी गिवन है,
फील्ड भी गिवन है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज का फील्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/4πε0 Q/r², हमें गिवन है 32. So first we'll use the field formula due to a point charge 1/4πε0 Q/r² and its value is given to us 32. Similarly, potential formula due to a point charge we will use 1/4πε0 Q/r and its value is given to us as 16. Using these both the equations, we'll simplify it and value of r can be calculated. Here dividing 1 by 2, we can easily calculate the value of r. So now after calculating the value of r, what we have to do, calculate the magnitude of charge and distance of charge from the point of observation. तो distance हमारे पास calculate हो गई, अब हमें find out करना है value of charge. तो ये r का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें. 1/4πε0 हमें पता होता है 9 × 10⁹. This value is given, r is known to us, so q can be easily calculated. Okay, now next topic is potential due to group of charges. This also we have completed. Now let's solve some examples related to this. Calculate the potential at the center of a square. ABCD कोई स्क्वायर गिवन है, इसका हर एक साइड का वैल्यू गिवन है. ड्यू टू चार्जेस कैप्ट एट द कॉर्नर्स गिवन है हमें 2 माइक्रोकूलम -2 -3 6 एट 4 कॉर्नर्स ऑफ इट. ABCD 4 कॉर्नर्स पर रिस्पेक्टिवली ये 4 चार्जेस को रखा गया है. सेंटर O पर हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. सो सेंटर O से जो इसका सेपरेशन है दैट विल बी बाइसेक्टर ऑफ डायगनल. एक डायगनल का जो डिस्टेंस होता है फॉर ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2l. L जो है स्क्वायर का वो हमें √2 ही गिवन है, तो दैट विल बी इक्वल टू √2 × √2, दैट मीन्स 2 मीटर. जो डायगनल का लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स. तो जो डायगनल का बाइसेक्टर हो गया, हाफ हो गया, सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर हेयर. फॉर ऑल द कॉर्नर्स this distance, this distance, this distance, this distance, all 4 distances will be equal to 1 meter here. So for potential due to first charge 1/4πε0 Q1/r1. Q1 का वैल्यू रख देंगे, r is 1 meter. 1/4πε0 will be taken common for all 4 charges potential. Total potential will be equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. 1/4πε0 कॉमन आएगा, r सबका इक्वल है, इट विल बी टेकन एज कॉमन. अंदर क्या बचेगा, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. All 4 charges values will be kept and total potential can be calculated. जो चार्ज का वैल्यू है हमारा वो माइक्रो कूलम में हम पुट करेंगे. माइक्रो कूलम में हमें गिवन है तो इसे फर्स्टली कूलम में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग पावर ऑफ 10⁻⁻⁶. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल वायर इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस. इट इज़ गिवन ए चार्ज ऑफ दिस विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स. तो एक वायर है, वायर का लेंथ हमें गिवन है एंड वायर को हमने सर्कुलर लूप की फॉर्म में बेंड कर दिया. टोटल बेंड किया जो हमने, और सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो हमें गिवन है कि कितनी रेडियस का वायर बनाया. 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कुलर लूप बना दिया. ओके, अब सर्कल के सेंटर पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है. तो सिंपल फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r भी लगा सकते हैं. Q जो है वो इस पूरी वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन अब लेकिन जो वायर था हमारे पास, वायर जो है वो स्ट्रेट वायर था, मेटल वायर इज बेंट इनटू अ सर्कल. अब क्या है कि देखो, जो इसने यहाँ पर हमें ये नहीं गिवन है कि जो चार्ज है दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इन हाउ में विच मैनर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने सपोज़ कर लिया कि पूरे लूप के विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया जिस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है dq. ओके, एंड ड्यू टू दिस dq द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी 1/4πε0 dq/r.
नाउ इंटीग्रेटिंग इट वी विल गेट टोटल चार्ज, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल चार्ज, देन ऑल्सो वी विल गेट द सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. Total charge is given to us, total radius is given to us, total potential will be easily calculated. Okay students, okay. Next question is, two charges this and this are located 15 centimeter apart. A and B दोनों पर charges given है, total separation given है. At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? ऐसे क्वेश्चन हमारे पास फील्ड वाले चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर में भी आए थे कि ऐसा पॉइंट बताओ दोनों की लाइन जॉइनिंग पर जहाँ पर फील्ड 0 है. तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू कोई सेपरेशन सपोज कर लेते हैं. सपोज ले लिया कि ए के विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस पर ये ओ पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या है, 0. तो बी के विद रिस्पेक्ट टू इट विल बी एट सेपरेशन दिस 15 सेंटीमीटर माइनस एक्स. 15 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 0.15 माइनस x it will be. Now if total potential at point O is 0, that means V due to A plus V due to B will be equal to 0. तो V due to A 1/4 pi epsilon naught QA by X, V due to B 1/4 pi epsilon naught QB upon R minus X. टोटल पोटेंशियल कैलकुलेटेड, वी ए प्लस वी बी दोनों के सम को 0 के इक्वल रख दिया. यहाँ से x का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. दैट मीन्स कि x जो था वो हमने a से इतना सेपरेशन पर लिया हुआ था, तो दैट मीन्स इतना सेपरेटेड फ्रॉम पॉइंट a द टोटल पोटेंशियल विल बी 0. ओके स्टूडेंट्स, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABCD is a square of side 0.2 meter. ABCD is a square of side 0.2 meter. Charges of this coulomb are placed at corners A, B, C respectively. 3 corners पर charges रखे हैं. Calculate the work required to transfer a charge of this coulomb from corner D to center of the square. हमें एक चार्ज है कितना, दिस टेस्ट चार्ज Q नोट रखा 2 × 10⁻⁻⁹ कूलम को हमें मूव कराना है फ्रॉम D टू O. वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो फिर से वर्क डन पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स VO माइनस VD. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू टेस्ट चार्ज इंटू VO माइनस VD. ओके, अब VO कितना है, VO कितना है, इस सेंटर पर कौन कौन पोटेंशियल लगा रहा है, जितने चार्जेस अवेलेबल हैं. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3. R1 R2 R3 कितना है, उसी डायगोनल के बाइसेक्टर फॉर्मूला से ये कैलकुलेट कर लिया. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ VO. AO BO CO कितना है, हाफ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. हाफ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन टू अस एज 0.2 मीटर. तो लाइक दिस इट विल बी कैलकुलेटेड. तो VO निकल गया हमारे पास. अब VD कितना है, D पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना लगा, ये भी किसने लगाया, जितने चार्जेस अवेलेबल हैं सराउंडिंग में. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3. यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जब A और C ने लगाया तो साइड ऑफ द स्क्वायर यूज़ हो रहा है R के रिप्लेसमेंट में, लेकिन जब B ने पोटेंशियल लगाया तो क्या होगा, डायगोनल का लेंथ यूज़ होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस पोटेंशियल. AD BD CD. AD CD is equal to the side of the square and BD will be equal to the diagonal of the square. Okay, so like this it will be calculated the value of V at D point. Now VD is calculated, VO is calculated, so like this work done can be easily calculated. Okay students, so till this topic we have completed our numericals. Hope you have understood it. Revise it completely, do written practice for more such numericals. Okay students, thank you.